So continuing with the chapter, aggregate demand and aggregate supply, here we are discussing now the topic investment function. So investment function means investment, that how much with the investing in the business, how much the return we are getting. Okay, investment is a process of capital formation in which we invest in our business. Whatever we are earning, we again invest in the business. And the new capital assets are being formed. Okay, ये process होता है जिससे नए capital assets form होते हैं, उसको investment बोलते हैं. Okay, यानी कि जब हम पैसे को यूज करते हैं और पैसा कमाने के लिए, उसे इन्वेस्टमेंट बोला जाता है साफ सी भाषा में. इन्वेस्टमेंट बच्चों दो तरीके का होता है. एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, एज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. Investment is of two types: induced investment and the autonomous investment. Induced investment is the investment which is due to the profit motive. Okay, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हम इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करते. इवन हम वहां से पैसा विड्रॉ करके उस पैसे को कहीं और लगा देते हैं. इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो खासकर प्रॉफिट मोटिव से करा जा रहा है उसको इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बोला जाता है. दूसरा आता है यहाँ पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो विदाउट प्रॉफिट मोटिव है, जो कि हमने अपने एग्रीगेट डिमांड वाले कॉन्सेप्ट में लिया था C+I. आपको मैंने बोला था ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो कि सेम रहता है whether the profit is increasing or whether the profit is decreasing or even the profit is zero. That is done for the welfare of the country and that is done mainly by the government. So autonomous investment is the investment which is done without the profit motive, while induced investment is the investment which is done with the profit motive. जो सिर्फ profit motive से करा जा रहा है उसको हम बोलते हैं induced investment. Just mark the definition of this. Induced investment is given over here in page number 7.16 in the bold letters, and also mark the definition of the autonomous investment. Okay. Now, autonomous investment is constant. It remains constant because it is without the profit motive. But this induced investment is done only with the profit motive. Okay. Now, this investment this induced investment depends upon two factors. First one is marginal efficiency of investment and the other one is rate of interest. Okay. This induced investment depends upon two factors. First is marginal efficiency of investment and the other one is rate of interest. Okay. So first we are discussing marginal efficiency of investment, यानी कि पैसा लगाने पर हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी एफिशिएंट है. एफिशिएंट मतलब जो हम पैसा लगा रहे हैं अगर हम उसे रिटर्न नहीं मिल रहा है, बेटा अगर मेरा उससे प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहा है तो मेरा पैसा लगाना बेकार है. पैसा हम वहीं पर इन्वेस्ट करते हैं जहां पर की प्रॉफिट हो रहा. मान लीजिए अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको आगे पढ़ाएंगे. अगर आप पढ़ाई में दिमाग नहीं है, आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ाई में, तो आपका जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप उस फील्ड में अपना जाएंगे ना. तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इसीलिए होता है कि जहां पर मुझे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वहां मैं पैसा इन्वेस्ट करूं. अब मेरी उससे एफिशिएंसी कितनी आ रही है इन्वेस्टमेंट की, मैं कितना वहां से पैसा गेन कर रही हूँ, कितनी मेरी इन्वेस्टमेंट एफिशिएंट है अपना काम करने में, that depends upon that will discuss in the marginal efficiency of investment. Okay. MEI refers to the expected rate of return from an additional investment. MEI is determined by two factors. Again, this MEI is also determined by two factors. Okay. First one over here is supply price, and the other one over here is, this is for this marginal efficiency of investment, and the other one is prospective yield. Supply price and the prospective yield. Just now see this, mark the definition. Supply price, what is? It refers to the cost of producing a new asset of that kind. It is a price at which the new capital asset can be supplied or replaced. यानी कि आपने जो अपनी नई कैपिटल एसेट ली है वो कितने की आई है, या अगर आपने अपनी पुरानी मशीनरी से नई मशीनरी को रिप्लेस किया है प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो भी सप्लाई प्राइस होता है. यानी कितना आपका पैसा खर्च हुआ है उसको हम बोलते हैं सप्लाई प्राइस ना. कोई आपने नई मशीनरी लगाई या आपने कोई पुरानी वाली को रिप्लेस करके नया लगाया है तो उसमें आपके पुराने कितने की गई ना और नई कितने की आई, दोनों को माइनस करके आपका आ जाएगा सप्लाई प्राइस. For example, if a machine of rupees 10,000 is replaced in place of an old machine, then rupees 10,000 is the supply price.
Second one is prospective yield. It refers to the net return expected from the capital asset in its lifetime. अब ऐसा तो नहीं है जो मैंने पैसा लगाया 10,000 रुपए सारा का सारा एक साथ प्रॉफिट आ जाएगा ना। इसका हम क्या निकालेंगे, इसका मुझे नेट रिटर्न सारे खर्चे काट करके, जितना मेरा पैसे खर्चा लग रहा है, लोडिंग का लग रहा है, लेबर का लग रहा है, बिजली का लग रहा है, जितना खर्चा लग रहा है वो सारे खर्चे काट करके मुझे पर लाइफ टाइम में, पूरा लाइफ टाइम अचीव, जब तक ये सब कुछ रहेगा, जब तक वो टेक्नोलॉजी रहेगी, तब तक मुझे उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना मिल रहा है हर एक इंटरवल पर, वो क्या आ जाएगा, प्रोस्पेक्टिव यील्ड। देखिए, इफ द गिवन मशीन इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड receipts of ₹1200 and running expenses will be 200, then the prospective yield is 1200 minus 200। ठीक है, यानी कि अब 10,000 की मशीन लगाई है, तो अगर मेरा जो यील्ड आ रहा है उससे वो आ रहा है 1200 रुपए, और मेरे उस पे 200 रुपए खर्चा लग जा रहा है, यानी कि जो नई मशीनरी मैंने लगाई उससे एक्स्ट्रा जो मेरा प्रोडक्शन हो रहा है वो 1200 हो रहा है, और 200 उसके मेरे से रनिंग एक्सपेंसेस चले जा रहे हैं, तो मेरा क्या आएगा, 1000 रुपीज will be prospective yield from the new capital asset. We are not talking about over here whatever the previous are existing. Investment का मतलब होता है जब हम चलते बिजनेस में और पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने 10,000 रुपए तो मेरा आ गया सप्लाई प्राइस, जितने ही मैंने इसको चेंज किया या नई मशीनरी लगाई, और 1200 रुपए मेरा उस नई मशीनरी से प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और 200 रुपए मेरे उसके एक्सपेंसेस चले जा रहे हैं, तो मेरा प्रोस्पेक्टिव यील्ड कितना आएगा, 1000। अब हम कैलकुलेट करेंगे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन सबसे कैसे निकालेंगे, दिस इज प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन सप्लाई प्राइस इनटू 100, सो इट कम्स आउट एज 1000 upon 12,000 into 1000 upon 10,000 into 100. Okay, so this will be what it will be 10%, यानी मुझे 10% का रिटर्न मिल रहा है इस सबसे। मान लीजिए मैंने कितने पर मेरे 10% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। ओके, अब मेरी इन्वेस्टमेंट भले अपनी है, भले मैंने इंटरेस्ट पे लिया है, ये सब कुछ देखते हुए अगर मेरा प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, देन आई कैन go for the next investment. Okay. Now the second one thing which affect this induced investment is rate of interest, because जरूरी नहीं मेरा पैसा मेरा हो, सप्लाई प्राइस मेरा पैसा हो सकता है, मैंने इंटरेस्ट पर भी पैसा लिया हो। Okay. Now just see this, it refers to the cost of borrowing money for financing the investment. मेरे पास मेरा कितना खर्चा पड़ा कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट लिया, मुझे उसका इंटरेस्ट भी तो पे करना है ना। हो सकता है पैसा मेरा ना हो, या मैंने पैसा अपने कहीं और से निकाल करके, हो सकता है मुझे वहां से प्रॉफिट हो रहा, वहां से हटा करके मैंने अपने बिजनेस में लगाया है, तो मेरा उसका खर्चा कितना पड़ा है। There exists an inverse relationship between rate of interest and the volume of investment. At a high rate of interest, the investment spending will be less and vice versa. Okay? अब देखिए, अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या सजेस्ट करता है, अगर आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। यानी मान लीजिए आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी 10% आती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका पड़ रहा है सपोज करिए 8% पड़ रहा है। ठीक है, सपोज करिए 8% पड़ रहा है, वैसे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक, तो अगर ये आपका 8% पड़ रहा है, तो यानी कि ठीक है, आप ठीक ठाक प्रॉफिट कर रहे हैं, आप नुकसान में नहीं है। लेकिन अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है, तो उस केस में आप सोचेंगे कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं कि ना करूं। अब मान लीजिए आपका एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट तो आ रहा है 10%, पैसा आपने पकड़ रखा है 12% पे, 15% पे, तो आपको नुकसान है ना इस तरीके से ना। तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इन दो फैक्टर्स से प्रभावित होती है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। Now just mark the definitions for this ex ante and ex post investment and savings. Now ex ante savings and ex ante investment. Okay, ex ante savings का मतलब होता है बेटा, जबकि हमारी proposed investment कितनी है, हमने कितना सोचा है कि हमने सेविंग्स कितनी है, हमने कितना सोचा इस साल आने वाले साल में हम कितनी सेविंग्स कर लेंगे, वो कहलाती है ex ante सेविंग।
और एक्स आंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक्स आंट का मतलब होता है वही बात, हमारी प्रपोज इन्वेस्टमेंट कितनी है, हमने कितना सोचा इस साल में कितना पैसा इन्वेस्ट कर दूंगी, वो कहलाएगा एक्स आंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दूसरी चीज आती है एक्सपोज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। इन एक्सपोज इन्वेस्टमेंट, एक्सपोज मींस कि मेरा एक्चुअल सेविंग्स कितनी हुई, मैंने सोचा, सपोज करिए कि मैंने सोचा कि मैं इस साल 1 लाख की सेविंग्स करूंगी, वो तो हो गई एक्स आंट सेविंग्स ना। और एक्सपोज का मतलब क्या हुआ, मैंने सोचा तो 1 लाख की करूंगा, लेकिन मुझे कोई खर्चा निकल आया बीच में से, मुझे किसी बीमारी पर पैसा लगाना पड़ा, तो मैं सेविंग सिर्फ 50,000 कर पाई ना। तो एक्सपोज क्या हुई? एक्चुअल सेविंग्स, यानी कि एक्सपोज मींस जो मैंने एक्चुअल में सेव कर पाई, हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है इससे ना। तो एक्सपोज मतलब होता है एक्चुअल सेविंग्स कितनी हुई। और उसी तरीके से एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि जितना मैंने एज्यूम किया था, डिजायर प्रपोज किया था, उसके अगेंस्ट मैं कितना एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कर पाई हूँ, वो कहलाता है एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यानी कि एक्स आंट, भले सेविंग्स तो भले इन्वेस्टमेंट हो, एक्स आंट मींस प्रपोज्ड एंड एक्सपोज्ड मींस एक्चुअल सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कितना है, वो कहलाता है एक्सपोज्ड सेविंग्स एंड एक्सपोज्ड investment. So here now we are continuing with the topic, the determination of income and employment, chapter number 8. It's the same topic, only chapters are being divided. Come to chapter number 8. Okay, so here we have to see where the economy is at the level of equilibrium. यानी कि जो अपने concepts पढ़े थे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के, तो हमारी इकोनॉमी किस स्टेज पर जो इक्विलिब्रियम लेवल को अटेन करेगी, ऐसी कौन सी स्टेज होगी जहां पर वो इकोनॉमी हमारी बिल्कुल बैलेंस स्टेज पर आ जाएगी। यानी कि जो लोग काम करना चाहते हैं, जितनी डिमांड है, वो कहां पर सप्लाई से मीट करेगी, that we are going to now discuss. So here now we have read about the two concepts, aggregate demand and aggregate supply. Aggregate demand is equal to C plus I and aggregate supply is equal to C plus S. Okay. Now we are taking Y, C, I and S because these all will require for the equilibrium. Same schedule that we have taken before, 0, 100, 200, 300, 400, 500. Okay. C is 50, 100, 150, 200, 250 and 300. 50 rupees करा है. Investment is continuous, 100, autonomous, and savings are Y minus C. This is minus 50, 0, 50, 100, 150 or 200. Okay. Now we will come to, first of all we will calculate aggregate demand, that we calculate as C plus I. C plus I will keep आएगा. This is 150. This is aggregate demand. Then 200. Then 250. Then 300. Then 350. And then 400. and aggregate supply is C plus S. This is 0. C plus 50 plus minus 50. 0. This is 100. This is 200. This is 300. This is 400. And this is 500. Okay. So this is the aggregate demand, aggregate supply. Now, where the economy is at equilibrium? The economy is at equilibrium where aggregate demand is equal to aggregate supply. Means जितनी इकोनॉमी चीजें डिमांड कर रही है, जिस स्टेज पर उसको वो सारी चीजें मिल जाएंगी, वो क्या कहलाएगी? इक्विलिब्रियम की स्टेज. Okay? तो देखिए यहाँ पर कहाँ पे इक्वल है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई? At this level. Means yes. When income is 300, at this stage, the economy is at the level of equilibrium. It means whoever, those who want to work, those who are demanding, it is being supplied and the stage is at full employment. पूरी situation जहाँ पे balance stage पर है, इसे हम निकालते थे consumers equilibrium, producers equilibrium, उस तरीके से कहाँ पर पूरी balance stage आ रही है, that is this stage. Here now we are showing this with the help of diagram also. Just see this. Here we are showing income and on the y-axis we are showing aggregate demand and aggregate supply. This is x-axis, this is the y-axis. Y, this is income. Y is related with income. Here now we are showing income 0, 100, 200, 300, 400 and 500. And this is again 100, 200, 3,
4 and 5. Just see this was about aggregate demand. 0 पे कितना बचेगी? 150. यहाँ से start करेंगे 150 and then 100 this is 200, 200 this is 250, 300 this is 300 and 400 this is 350 and at 500 this is 400. Okay? ये हो जाएगा आपका aggregate demand. और aggregate supply 0 पर 0, 100 पर 100, 200 पर 200, 300 पर 300, then 400, then 500. Okay? और ये जाएगा आपका aggregate supply. हाँ? तो अब कहाँ पर equilibrium है? This is the stage of the equilibrium. ये हमारा इनकम लेवल क्या है? 300. At this stage, the economy is at the most satisfied stage. Whatever is being demanded is being supplied by the economy, and this is an easier schedule that you can see. Simply the same schedule I have taken, so that you need not to learn again and again. So this is a stage where the economy is at the equilibrium level.